Hello everyone and welcome to Subjects Academy Learner aka SAL. So today we are going to be doing the history PYQ of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. As you know, from 1st February to 20th of February we are doing a fast revision kind of a PYQ sessions for your boards, and obviously I'm going to be your history and geography mentor. I am your history geography mentor, and this is going to be a long video because there are going to be 4 chapters that we are going to be covering. That is the rise of nationalism in Europe, nationalism in India, the making of the global world, and then print culture and the modern world. Since age of industrialization has been deleted, and even work life and leisure is also deleted, so we are not going to be covering the PYQs of those chapters. So I have chosen the PYQs of this history chapter, so that once we do all of these questions listed here, you get the whole idea of this chapter, right? You get the whole complete revision maybe. So that is what I kept in mind while inserting the questions in this. So we are going to be doing this. So in obviously rise of nationalism in Europe, we are going to see what mark questions we are gonna get. Obviously we're gonna get 1 mark questions, obviously, and we might get 2 mark question or 3 mark question. दोनों में सिर्फ एक में देंगे, एक मेन में, और 5 मार्क क्वेश्चन तो पक्का है. ओके, 5 मार्क्स क्वेश्चन देंगे ही देंगे, ठीक है. और ये 5 मार्क क्वेश्चन को नहीं देकर भी वो क्या है, केस बेस्ड स्टडी में पूछ सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी जो है 5 मार्क्स आस्क करने में वो तो बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए प्लीज़ वॉट एवर द टॉपिक्स दैट कैन बी गिवन फॉर द 5 मार्क्स, learn those topics. All right, so next, moving on, the rise of nationalism in Europe. Obviously we learnt in this chapter how nationalism emerged in Europe and how the French Revolution contributed to this, and even we saw the emergence of the new class. We saw how aristocrats lived in these 18th and 19th century, right? And we saw the emergence of many nation states such as Britain, not nation state but still, and then we did also see an emergence of unification of Italy and then Germany and then many other countries together, and we saw the Balkans composition and the internal disputes, and we saw the example of the Habsburg Empire, how the ethnic composition was there. See, we learned all of this in this chapter, right? And then we also learned about the Romanticism. We also learned how culture, language, all of this played such an important role in the making of a nation state, right? So we learned all of that in this chapter, and we are going to be doing the PYQs of this chapter as I told you before. So moving on, we have the first question right here. In 1861, Friedrich Wilhelm IV was proclaimed the King of United Italy. True or false? I'm gonna give you a moment to answer in the chat. So obviously the answer is false, because Friedrich Wilhelm IV was proclaimed the King of United Germany. All right, as you know, he was proclaimed as the king in the Hall of Mirrors in the Palace of Heated Walls of Versailles, right? So moving on, the term absolutist referred to a monarchical government. True or false? हाँ जी, क्योंकि ट्रू होगा, बिकॉज एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट मतलब है जिन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसपे कोई पावर एग्जीक्यूट कर रहा हो, उनका रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा.
या कि आप रूलर हो या फिर आप कोई डिक्टेटर हो, आपका पावर जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता आपका पावर। वो है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट कह सकते हो आप। सो इट इज रेफर टू द मोनार्कल गवर्नमेंट, क्योंकि मोनार्की में हम जो भी पावर एग्जीक्यूट कर रहा है वो मोनार्क, उसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते, मतलब हम कोई ऑपोजिशन नहीं कर सकते उनको, ठीक है। सो वो रेफर करता है ये, सो ट्रू होगा ये ऑब्वियसली। एंड देन next question, what did liberalism stand for in the economic sphere? So we saw the emergence of liberalists, right? Liberalist ideas, revolution, liberalist revolution after the conservatism of 1815, after the Treaty of Vienna, right? We saw that. And what did liberalism exactly means? Freedom. Liber means free in Latin, right? So liberalism, the idea of being free or getting freedom from something like this monarchy or this type of government, right? So what did this liberalism, ये economic sphere जो है, जो trade, commerce या फिर एक कंट्री की जीडीपी, उसकी economic sphere में मतलब क्या है इस लिबरलिज्म का? जब हम लिबरलिज्म मिलेगा तो इस इकोनॉमिक स्पीयर में क्या होगा, राइट? सो लिबरलिज्म मतलब लिबरलिज्म आने में इकोनॉमिक स्पीयर में चेंजेस क्या आएंगे या फिर आनी चाहिए, ठीक है? तो इन द इकोनॉमिक स्पीयर, this is a 2 mark question, this is a 1 mark question, 1 mark question, all right? So this is a 2 mark question. So liberalism जो economic sphere में होगा, liberalism stood for, मतलब liberalism जो economic sphere में meaning है वो stood for the freedom of market, ठीक है, the freedom of market और abolition of restriction on the movement of goods and capital. जो restrictions थे, जो goods and capital मतलब money होगा या फिर human capital, कुछ भी, या goods समझ लो, उनके ऊपर restrictions थे, मतलब tax, tariffs, dues भरने पड़ते थे यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उनके जो थे वो ड्यूज और समथिंग, उसको अबॉलिश किया जाए, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ मार्केट दिया जाए। ये था लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्पीयर में, ठीक है। सो मूविंग ऑन, दैट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। आपको 2 मार्क जैसे लिखनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन लिखकर नहीं आने हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स हाउ इंग्लैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इन 1801। सो we have to learn about we are getting asked about the unification of Britain, right? The great kingdom of, so जो ब्रिटिश का यूनिफिकेशन था, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, सिर्फ ब्रिटेन नहीं क्लासिफाई होता था 1801 में। जब हम 19th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी ब्रिटेन के बारे में बात करें, जो एक वो लार्ज आइलैंड है ब्रिटेन, उसके बारे में नहीं बात करते थे। प्रेजेंट डे आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के बारे में भी बात करते थे, क्योंकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड किंगडम नहीं, ब्रिटेन कहा जाता था, उनमें इनकॉर्पोरेटेड थे। तो ये पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स कैसे इंग्लैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड, इट शुड नॉट बी इंग्लैंड, इट शुड बी आयरलैंड. Okay, not England. How Ireland was incorporated. How Ireland was incorporated into the United Kingdom in 1801. कैसे आयरलैंड को इंग्लैंड जो यूनाइटेड किंगडम में जोड़ा जाया गया, ठीक है। आपको पता है जो टेंशंस दे इज आयरलैंड के नेशन में या फिर रीजन पे, वो था जो रिलीजियस बेसिस पर डिवीजन हुआ था, मतलब रिलीजन का मतलब नहीं, जो रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, कैथलिक्स या फिर क्रिश्चियनिटी में ही आपके 2 तरह के पीपल पाया जाता है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, राइट। सो ये डिवीजन बना गया था यहाँ पर। जो दो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया।
ये कैथलिक्स को बहुत डर लगा, ये हमारे आयरलैंड को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो कैथलिक्स ने भी रिवोल्ट किया इस ये जोड़ी हुई बातों में। ठीक है, जो जब ये ब्रिटिशर्स थे वो जब प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तब कैथलिक्स ने भी रिवोल्ट किया। जो कैथलिक्स अपोज दिस मूव, राइट, एग्जैक्टली, एंड रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ विल्फ्रेड थोन। ओके, सो इनके अंडर इन्होंने लीड किया इस क्या है, रेवोल्यूशन को, मतलब नॉट रेवोल्यूशन, रिवोल्ट को, जो कैथलिक्स, ठीक है, कैथलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर रिवोल्ट किया और ब्रिटिशर्स के ऊपर भी। बट हाउएवर दे फेल्ड। उन्होंने क्या किया, ये जो रिवोल्ट था या फिर रेवोल्यूशन कुछ भी था वो फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तब क्या हुआ, इन जो आयरलैंड पीपल, आयरिशमैन थे, मतलब आयरलैंड के पीपल, उनको फोर्सफुली ब्रिटेन के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब यूनाइटेड किंगडम से इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गया, एक था कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, अनदर था ब्रिटिशर्स ने या फिर यूके के पीपल ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, कैथलिक्स ने रिवोल्ट किया, पर वो रिवोल्ट इट वाज इट फेल्ड, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, ये आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, वो हुआ ब्रिटेन। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज व्हाट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप, एक्सप्लेन। इन्होंने क्या पूछ रहे हैं, मिडिल क्लास के बारे में। तो मिडिल क्लास पीपल जब इमर्ज हुए, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, मिडिल क्लास पीपल कैसे इमर्ज होंगे, लाइक फ्रेंच नेशन में भी, और यहाँ पर भी आपने पढ़ा है जो मेन अरिस्टोक्रेट्स इन द न्यू और द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो वहां पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी यूरोप में, कंप्लीट यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। तो इससे न्यू क्लास इमर्ज हुई, वो है वर्किंग क्लास। अलोंग विथ इट क्लास ऑफ पीपल इमर्ज कॉल्ड द न्यू वर्किंग क्लास। ऑब्वियसली जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे उसको वर्किंग क्लास को बोला जाता है ना, लाइक उठो या फिर उठो, काम पर जाओ, आओ, वर्किंग क्लास। ठीक है, एंड दिस इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब है जो इंडस्ट्रीज को चलाते थे, या फिर वर्कर्स भी आते हैं फिर, या हाँ। तो but even though they were in small number, educated, liberal minded, and they oppose these ideas of the society with monarchy, राइट। जो ये मोनार्कीज में और अरिस्टोक्रेट से ये सोसाइटीज रन होता था उसको बहुत अपोज करते थे, क्योंकि ये लिबरल माइंडेड थे, मतलब फ्री माइंडेड थे। उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम टू वोट चाहिए, फ्रीडम टू चूज चाहिए। ठीक है, ये लिबरल माइंडेड पीपल थे। तो इसीलिए इनको ये बहुत सारी जो अरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज ये वाले आइडियाज थे सोसाइटी में, इनको अपोज करने लगे। ठीक है, एंड देन they strongly condemned aristocratic setup in the society। मतलब मैंने जो कहा है वो इनको abolish करना चाहते थे, लेकिन इनको निकालना चाहते थे जो पावर से। ठीक है, and it was because of these ideas they gained popularity and emerged as a new social class। सोशल क्लास का मतलब है जो सोशल में डिविजन होता है ना, लाइक रिच, पुअर और द हैव्स और द हैव नॉट्स और द अरिस्टोक्रेट्स और द पावरफुल पीपल और द पावरलेस पीपल, लाइक दैट जो सोशल डिविजन होता है ना, लिबरलिस्ट और ये, हाँ, जो ये सोशल क्लास होता है, सोशल या फिर सोसाइटी में क्लासेस जो होते हैं, उनमें एक न्यू क्लास आया जो है मिडिल क्लास। सो दैट वाज what led to the emergence of the new middle class in Europe. So explain हुआ. So we need to sorry, I skipped a question there.
So we need to discuss the lives of aristocrats and the new middle class in the 19th century France. So let's tackle aristocrats first. So aristocrats are the people normally who are kind of indirectly or directly related to the monarchy or the person in power in that state. Right? State का मतलब है जो region होता है उनमें और ये aristocrats थे, ये बहुत rich थे, ये बहुत powerful थे और ये related थे obviously to the ruler. ठीक है. जब भी ये रूलर से रिलेटेड होंगी ये बहुत रिच होंगे, हाँ उनसे भी रिच, यू नो दे विल गेट रिच ऑब्वियसली इफ हैविंग कनेक्शंस ऑल एंड ऑल ऑफ दिस. ठीक है. और जाते जाते these aristocrats like kind of spoke a different language from the people, like the peasant people. Some spoke Polish, some spoke French, some spoke German in different regions, right? हम जिनोवा के अरिस्टोक्रेट्स के बारे में बात करें तो वो पोलिश स्पीक करते थे क्योंकि फॉर द मैटर ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है. तो जब अरिस्टोक्रेट्स की बात करें तो ये obviously हमें बात करनी चाहिए. They spoke the different language from the people, like from the common people, to differentiate them or for the matter of diplomacy, right? And then they were also well educated because only like the kind of educated people were the aristocrats, like not like these socially educated or these liberal minded people, just educated in the sense they kind of like modern education you can get, because like even in India like the higher class people were only allowed to go to school or something like that, right? And this was also like that, so they were also educated and they were at the high kind of a social class, right? Not like high but like rich और ऊपर थे बहुत. ठीक है. जब हम सोसाइटी के बारे में वो अपर क्लास में थे और एंड ऑब्वियसली दीज aristocratic families were connected by marriage because they didn't want to marry into common people and lose their kind of you know thing. Okay, so that is the lives of the aristocrats in the 19th century France. And then we need to talk about मिडिल क्लास. ऑब्वियसली मिडिल क्लास हमने डिस्कस किया व्हाट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोप. हमने अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी को हमने एग्जांपल्स दिया. और ये जो लिबरल्स पीपल थे जो वर्किंग क्लास में यू नो कैटेगराइज किया जाता था इन लोगों को क्योंकि ये वर्क करते थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, आर्टिजान्स और ये इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे वर्क करते थे. और ये मिडिल क्लास पीपल में भी they were also educated and they had a liberal mind. मतलब ये फ्रीडम टू वोट हो गया, ये कुछ भी जो लॉज थे वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे और ये अरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज को रिमूव करना चाहते थे. तो इसीलिए ये यू नो मिडिल क्लास का ये हुआ. ठीक है. आप इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हो. ठीक है. तो ये फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड. हाँ, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. सो आप जब वो 3 फीचर्स पूछा जाता है तो आप 4 या 5 लिख कर आ जाओ, जस्ट टू बी सेफ, राइट? आप एक को बहुत अच्छे से समझ कर यू नो रट कर लिख कर आओ, पर एक को मिस कर दो, पॉइंट इनएक्यूरेट होगा कभी कभी. तो इसीलिए यू नो जस्ट टू बी सेफ 2 एक्स्ट्रा लिख कर आओ, क्योंकि लाइक क्या जाता है यार. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेपोलियनिक कोड हमें एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. लाइक नेपोलियनिक कोड केम व्हेन नेपोलियन केम इनटू पावर. ऑब्वियसली द काउंसिलमेन ऑफ नेपोलियन in 1804 sat together and made a uniform laws and introduced a new rights of man, we can say, right? And this was called the civil code. This was also called the civil code of 1804, and it came to be known as the Napoleonic Code in 1807. Obviously this was introduced by Napoleon Bonaparte when he came into power. And then moving on, the 3 features को 3-4-5 features को explain कर दिया जाता है. The first thing that the changes were to this Napoleonic Code, we have to write that he took away all the privileges based on birth.
जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है, मतलब आप एक क्लरिक के फैमिली में बॉर्न हो तो वो क्लरिक की चीज़ों कर कर आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें भी प्रोफेशंस बनाने हैं, ठीक है, इसको निकाला गया. It's okay, privileges based on birth and everyone was placed equally before the law. ये अच्छी चीज है. ओके, नेपोलियनिक कोड, आपको लगता होगा नेपोलियन वाज अ रियली बैड डिक्टेटर और समथिंग लाइक दैट, बट द फ्रेंच पीपल अडॉर्न नेपोलियन. ठीक है, उसका टूम देखे हो आप, लाइक द टूम ऑफ नेपोलियन, लिटरली इट्स सो मैग्निफिसेंट. The hall is highly decorated, it's highly kept clean, and even the tomb of Napoleon sits in the middle of the dome. You know the Gol Gumbaz in India, right? Like you can speak in that wall, and this यहाँ पर सुनाई देता है, yeah, the whispers, right? And that is how it is built, the tomb of Napoleon, and it still stands strong and good in France. ठीक है, तो मूविंग ऑन, आई एम सॉरी. एंड देन ही ऑल्सो अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम दैट वाज देयर. फ्यूडल सिस्टम का आपका मतलब है जो एक लैंड ओनर होगा, लार्ज लैंड ओनर होगा, आप जो होते हो वो कुछ लैंड को रेंट पे लेते हो, आप कल्टीवेट करते हो, उसको भी 50 पे देखते हो, आप 50 रखते हो, और आप जब सेल कर कर आपको पैसे कमाने हो, वो भी थोड़ा पैसे दे देते. ये है फ्यूडल सिस्टम इन द 19th सेंचुरी. तो इस फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया और पेजेंट्स जो थे इसको फ्री किया फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. मेनोरियल ड्यूज का मतलब है ये, आप जब सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, आप कुछ वैसे उधार में ले लेते हो यार उनको देने के लिए, तो ये होगा मेनोरियल ड्यूज. ठीक है, उनको देना पड़ेगा आपको फ्यूचर में जाके. इनको अबॉलिश किया गया कि मतलब पवन ने सुकृत जी को कुछ पैसे देने होंगे, ये हो गया मेनोरियल ड्यूज. ठीक है, देने नहीं है पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, द नेक्स्ट इज ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था उसको सिक्योर किया गया. मतलब एक कॉमन पर्सन कैन हैव हिज ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब वो जो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी आप रशिया में देखा जाएगा, लाइक वो जो आइडियाज थे, लाइक जस्ट कमिंग टुगेदर एंड joining the plots of land and cultivating it all together and dividing the thing for equal. That was not the act of private property, right? So moving on, next is ये 3 points हो गए हैं. ठीक है, एक दो और कर लेते हैं. Peasants, artisans, and new businessmen were allowed to form guild, and the guild restrictions that were there when monarchies were or Robespierre was ruling, they were all lifted. So आप जो guild है या फिर एक community बना सकते हो आपकी cause को fight करने के लिए, अब जब नेपोलियन आया था. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेज एंड मेजर्स, एंड अ कॉमन करेंसी विच फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जो एक कॉमन करेंसी होगा तब जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा वो इजी होगा कि आपको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, ये पैसे ये इंच के वैल्यू से ज़्यादा है कम है, ये सब छेड़छाड़ नहीं. ठीक है, और ये टमाटो तो 20 रुपए है, यहाँ पर तो 30 रुपीज़ है या फिर 50 रुपीज़ है, ये नहीं होगा. ठीक है, जब ये स्टैंडर्डाइज्ड वेज एंड मेजर्स थे, यहाँ पर भी 20, वहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी एक ही केजी 20 रुपए में, यहाँ पर भी एक ही केजी 20 रुपए में, ऐसा है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव टू ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स. मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन चीज है, ये रेलवेज या फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोप में, और इवन कॉलोनियल में भी आपने पढ़ा होगा जो होगा फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया, जब ये डच पीपल ने कॉलोनाइज किया तब भी रेलवेज वगैरह वगैरह बनाया गया. इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स ने आए थे रेलवे सिस्टम्स उन सभी को इम्प्रूव किया, रेलवेज को बनाया गया. ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे गुड्स जल्दी ट्रांसपोर्ट हुए. ठीक है, ये थे all of the features of the Napoleonic code. आपको इन सभी को लिख कर आना है, just memorize it or just write it somewhere. Do not write the whole point. So if you have the first privileges based on birth, आप क्या लिखते हो? Privileges based on birth,
abolished. ठीक है, और ये abolished feudal systems, freed peasants from serfdom. ये 2 पॉइंट्स में बांटा जा सकता है, पर एक ही पॉइंट में लिखूं कुछ भी नहीं होता. And he secured the right to property. And obviously, after writing all of this, these were the kind of the features of the Napoleonic Code introduced by Napoleon. ये सब लिख सकते हो. ठीक है. The next is, which act led to the formation of the United Kingdom of ब्रिटेन. सो विच एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये था एक्ट ऑफ यूनियन. ओके, सो एक्ट ऑफ यूनियन इन दी 1801. ओके, जब ये आया था एक्ट ऑफ यूनियन था. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. ये विच का मतलब है और ये एक्सप्लेन करने को नहीं दिया है. सो ये 1 मार्क्स का है. एंड व्हाट वर द रिएक्शंस टू द चेंजेस बॉट बाय नेपोलियन. चेंजेस हमने जो डिस्कस किया था, ये फीचर्स था 1804 में. इसके बारे में लाइक रिएक्शंस को पूछे जा रहा है. लाइक आपने होता है ना, लाइक ये न्यू प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन क्या है इन सोशल मीडिया में या फिर वर्ल्ड. लाइक क्या लोगों को पसंद आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहा है पीपल, या फिर अच्छे से वर्क कर रहा है. ये रिएक्शंस को ढूंढते हैं ना कंपनी, वैसे ही हम रिएक्शंस को पढ़नी चाहिए. तो रिएक्शंस था इकोनॉमिकल स्फीयर में. ये जो इकोनॉमिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, इन सभी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वेस्टर्न मेजर्स थे, एक कॉमन करेंसी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, एंड ऑल ऑफ दीज लेड टू लाइक kind of these people liking these features. But in the economic sphere, what happened, there were no political freedom as per se, because there was only one leader. You cannot get elected or do something about it. So in the economic sphere, there were no political freedom. Hence, the reaction was mixed. All right, because in the economic sphere, these people loved Napoleon, because क्योंकि आपके जो लाइक एक इजी सा होता है काम, तो आप उनको पसंद करते हो ना, लाइक कि सुकृत जी से मेरा काम आसान हो जाए, तो ये मदद करते हैं मुझको, तो मुझे सुकृत जी पसंद है. ठीक है, लाइक वो मेरी काम करते हैं, लाइक ही इज माय फेवरेट फ्रेंड. हाँ, मेरी काम करते हैं, मेरी हेल्प करता है, मैं भी उनको हेल्प करता हूँ, तो वी आर फ्रेंड्स एंड वी लाइक ईच अदर एज फ्रेंड्स. Right, but so when people do that, obviously they would like the leader, like in the economic sphere. But एक political sphere में जब आप बात करेंगे, तब ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, और ये राइट टू वोट और ये जो सफरेज बोला जाता है, राइट टू वोट सभी को, ये भी नहीं मिला था. सिर्फ एक एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो भी क्या इलेक्ट कर लेंगे. आप लीडर को तो चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इलेक्ट कर सकते थे. जो ये नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाया गया था जब नेपोलियन आया था, उनमें सिर्फ उनको इलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब एक्टिव सिटीजन्स को एक टर्म था. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, एक्टिव सिटीजन्स, मेन अबाउट 21 years old or about 21 obviously, who could pay the taxes of 3 wages in a week. जब मतलब एक over 21 years का एक मैन, ठीक है, एक मेल जो 3 दिन के वेजेस है, 3 दिन के अर्निंग्स है, उनको टैक्स के मतलब से स्टेट को दे सकता था, वो है एक्टिव सिटीजन, एंड सिर्फ वो ही वोट कर सकता था. ठीक है, और ये एक टाइम पीरियड आया जब रॉबिस्फियर था और जैकोबियन क्लब के अंडर सभी वोट कर सकते थे, पर जब नेपोलियन आया तब ये फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, और सिर्फ मैन अबाउट 21 years old who can pay the wages of 3 days in a week. Those. So as we were discussing, we saw the reactions to the to the changes brought by Napoleon, which were kind of mixed, as I was saying, guys, because many of the people accepted in the economic sphere and even in the trade communication kind of thing, but because it made their lives easier and such. But in the political sphere, they didn't have any political freedom. So that is why these
people, like politically speaking, did not accept this Napoleonic Code as such a good deal or something like that. Right. So the next is, just a second. Okay. So the next question is, what were the who hosted the Vienna Congress in 1815, which is after the defeat of Napoleon in Waterloo in 1814. Analyze the main changes brought by the Treaty of Vienna. So this Vienna Congress was mainly held to restore the conservative regime in Europe in 1815, which Napoleon ruined by conquering those states. So the obviously the Vienna Congress was hosted by Duke Metternich, Chancellor of Austria. And then, so I'm gonna say the following changes brought by the Vienna Congress, right? So first one is the Bourbon family was disposed during the French Revolution. Obviously they killed Louis XVI and his wife Marie Antoinette, and even there were no heirs at the time who were like rightful to the throne. So Bourbon kings, maybe of Spain or like descendants of the Bourbon family of Spain, were restored back into power, right, in France. Okay, so the kings and the queens of France came back. And the next is the territories annexed by Napoleon were taken back from France. Okay, so obviously it all joined to the French territory, so it will all taken back to divided into other nations. And the 39 German confederations were left untouched, alright, which Napoleon divided, right, during his rule. So they were left untouched. And the next is to prevent any further expansion of France, a series of states was set up around the boundaries of it. Okay, got it? That is the next point. And the next point is Kingdom of Netherlands, including Belgium, and came in the north, while Genoa along with Piedmont placed in the south. Okay, south का मतलब है स्पेन की तरफ. And Kingdom of Netherlands including Belgium came in the north, ऊपर में. ठीक है, Netherlands आपको पता है modern day Netherlands का है ना. So the next is, along with Saxony, some new territories was given to Persia on its western frontiers. Western frontiers का मतलब है जो भी ये वेस्ट की तरफ, मतलब यूएसए की तरफ. आप जब यूरोप की मैप देखते हो तब इसकी तरफ, ठीक है, यूएसए की तरफ. And then Austria got the control of northern Italy. Northern Italy, this is a very important point because during the unification of Italy, you also have to explain the overall ruling. Like south में Bourbon family था, middle में Pope था, because the Roman Catholic Church था Italy में, और ऊपर की तरफ Austria Habsburg Empire rule कर रहा था North Italy पर, है ना. So the next is Russia got the control of Poland. This is very important because after this, Poland tries to have 3 revolutions to free themselves, obviously, but 3 of them failed, and obviously going further they succeeded in becoming a free state like today. So the next question is, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. Quote, who remarked this and why? So आपको पता होगा लाइक ये किसने रिमार्क किया है. ऑब्वियसली इट्स ड्यूक मेटरनिच, द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. आपको फुल लिखना है. दिस वाज रिमार्क्ड बाय ड्यूक मेटरनिच, अ चांसलर इन ऑस्ट्रिया, ऑफ ऑस्ट्रिया या फिर इन ऑस्ट्रिया लिख दो, दोनों भी मेक सेंस होगा, ठीक है. एंड ये किस लिए रिमार्क किया गया? आप वो जब फ्रांस को लाइक छींक आती है तो सारे यूरोप को ठंड लगने लगती है, बिकॉज लाइक इट स्प्रेड्स काइंड ऑफ. वो बोल रहे हैं ना लाइक आप जब छींकते हो आपकी दोस्त को भी स्प्रेड होगा आपका कोल्ड या खांसी, है ना, वैसे कहते हैं ना, बिकॉज दैट इज ट्रू. दिस लाइक अ काइंड ऑफ वायरल फीवर एंड इट स्प्रेड्स. सो imagining the France which sneezed is French Revolution. Okay, that was the sneeze, and the rest of Europe catched cold.
मतलब क्या हुआ, जब फ्रेंच लोगों ने रिवोल्ट किया और ये नेशनलिज्म के आइडियाज डेवलप हुए, नेशनलिस्ट आए, लिबरलिज्म आया, ये सब आने पर फ्रांस में दूसरे जो स्टेट्स थे, मतलब कंट्रीज थे, स्टेट्स का मतलब कंट्रीज होता है, उन लोगों में भी रिवोल्ट करने लगे। ठीक है, आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि पर्शियन एंड ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर ट्राइंग टू सप्रेस दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज देयर पीपल might have gotten the idea and revolted, right? And Louis XVI made a deal with them to stop all of this, and he was caught and he was executed and whatnot. So that is what he was trying to say, and who remarked this and why. 2 marks के लिए आ जाता है ये, ठीक है? And then describe the process of unification of Italy. So unification of Italy is very important. So obviously in 1830s, Giuseppe Mazzini tried a lot of revolutions, and then it was failed, and the mantle, मतलब जो प्रेशर था एक नेशन स्टेट बनाने का, वो इटली में पड़ा, ठीक है? और किस स्टेट पर? सार्डिनिया पिडमोंटो, अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय विक्टर इमानुएल II. Okay, got these points. And we have to talk about the composition. So the center or the middle of the now Italian state was ruled by Pope. It's not Pope, it's Pope. And the north part of it was obviously given to Austria Habsburg Empire, as we talked in the changes brought by the Treaty of Vienna, right? And the south was ruled by in the south part was obviously ruled by the Bourbon kings of Spain. Bourbon kings मतलब फ्रांस में नहीं, अभी भी बर्बन किंग्स है, मतलब बर्बन फैमिली के जो डिसेंडेंट्स है वो अभी भी स्पेन में है. आपको पता होगा, लाइक आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, पर है अभी भी किंग्स, किंग और क्वीन और प्रिंसेसेस, ठीक है? एंड देन it was obviously led by Chief Minister Cavour, right? And read this point. This led to King Victor Emmanuel II taking responsibility to unify the Italian states through war, for which he got wholehearted support of his Chief Minister Cavour. Okay, ठीक है? Cavour के बारे में लिखना है, 3-4 people होंगे. एक विक्टर इमानुएल II, हु इज द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमोंटो, द प्रिंसली स्टेट, और एक जियोसेप्पे माजीनी, जियोसेप्पे गारिबाल्डी, ठीक है? और ये चीफ मिनिस्टर दे कैवोर, ठीक है? फर्दर गारिबाल्डी with his armed volunteers also joined the effort. They moved to the south part of the Italy, right? They have a sentence like that. They moved to the south part of Italy where they got the support of the peasants to revolt against the Bourbon kings, and they got that part. And obviously getting the Pope was easy, and even the getting the north part was also easy. So they acquired all of these parts, and Italy became the nation state that we know right now. Okay, so that is the process of unification of Italy. So describe any 5 steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people. ये है 5 mark का क्वेश्चन, और ऊपर वाला भी 5 marks का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू हैव इट इन योर थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर, राइट? सो एक है, सो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों बनानी चाहिए, मतलब वो हेल्प करेगी पीपल को रिवोल्ट करने में. ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल, एंड दे विल ट्राई टू रिवोल्ट अगेंस्ट इट. जस्ट राइट दोस फ्यू पॉइंट्स. 5 marks के लिए हमें आंसर एलॉबरेट करनी चाहिए, बिकॉज इट्स सोशल. Okay, you should never leave anything unelaborated. Okay, I will find you. So the next is the points I'm gonna say is obviously the ideas of la patria and la citoyen, matlab the fatherland and the citizen, which emphasized that I'm the citizen, or this is my fatherland and I have to fight for it. You can write that makes sense, right? You got a notification. Okay, so. And the next is the new flag, right? The new flag that was chosen to replace the old standard one, old royal standard one. You have to write that, okay? So because
Obviously, this new tricolor flag, blue, red, and white, was chosen to replace the old royal standard one to represent it's a new state, it's a new country, right? So, okay. And the next is uniform laws were formulated for all its citizens under a centralized administrative system. A national assembly was formed. ये सभी लिख सकते हैं. A general body of active citizens elected the State General and it was named the National Assembly. आपको पता है लाइक वो टेनिस कोर्ट का रिवोल्ट हुआ सिलिस में जब क्या हुआ वो उस जनरल मीटिंग you know kind of a general meeting called like 400-600 people and they all revolted. They didn't want the tax to be increased and they went to the tennis court and declared themselves the National Assembly. You know that moment in class 9th, na? And the next is new hymns were formed, and the next is martyrs were commemorated, and the next is a new national anthem, that is Marsilis, right? It's a new national anthem, I guess. In 9th में है ये सब, ठीक है. Oaths were taken all in the name of the nation. मतलब हम जो भी करते हैं इंडिया के लिए, हम national anthem गाते हैं, flag hoist करते हैं, ओथ लेते हैं हम, लाइक द इंडियन प्लेज, और कुछ भी हम करते हैं वो इंडिया नेशन के नाम पे ही करते हैं. हम हमारे लिए तो नहीं करते, एक फीलिंग आने के लिए हम करते हैं ये सब, जो हमारी रिस्पेक्ट जो है वो पे करने के लिए नेशन को, है ना. तो the next is which type of government was functioning in France before the revolution of 1789. कंजर्वेटिव लिख सकते हो या फिर मोर एक्यूरेट हुआ तो क्या, मोर एक्यूरेट हुआ तो आप मोनार्कल गवर्नमेंट लिख सकते हो, ठीक है. द नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation. ट्रू होगा बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन कहलाता है, ठीक है, वो है ट्रू. सो द मार्क इज इटाली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 3 points. ऑब्वियसली इटाली वाज अ फ्रैगमेंटेशन का मतलब है जो बांटा गया था इटाली को. नाउ इटाली है फुली फॉर्म्ड है ना. हाँ, जॉर्जिया मिलोनी है इटली से. तो जोक्स असाइड, सीरियस, ठीक है, वो इटली जो फ्रैगमेंट्स का मतलब है वो टूटा गया था, लाइक जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है क्या है वो जोड़ा गया सभी पार्ट्स को. सो उसके पहले इट वाज अ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, मतलब पॉलिटिकली डिफरेंट रूलर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स थे, ठीक है. तो क्या दे सकते हैं इसको सपोर्ट करने में. So the first point is obviously the south of Italy was ruled by the Bourbon kings of Spain and the center was obviously ruled by who? Pope. Pope का मतलब है जो the utmost religious head of the Christian community, Christian religion, you can say, you have to say like Pope. And the next is the north part of the Italy. Now Italy was ruled by Austro-Habsburg Empire. हो गया. So this is just the history, this is just another PYQ of the rise of nationalism in Europe. In this same video we will obviously covering nationalism in India and print culture and the modern world and even the making of the global world, right? So in a second I'll be displaying the PYQs of those two too. We are back. I had to take a break. So we are gonna continue just where we left off, and that is we need to do the chapter nationalism in India, right? So I'm just gonna open some tabs here. Wait a second. All right. Okay, bacha. Okay. So we need to continue, and I have like set the questions so that without like doing any revision you would get revision, ठीक है. revision हम करना ही रहे हैं because like the time is too short, you have to study other topics. So I have done the PYQs such that you just get the overall revision, and even the rise of nationalism वो भी हमने किया ना, वो भी वैसा ही था, ठीक है. चलो
So let's begin, and I have also included 2 map sessions that we are going to be doing. All right, so the first one is who were the Sanatanis. So Sanatani का मतलब है अभी उसको डिफरेंट मीनिंग आ गया है, सनातनी है हम, सनातन धर्म, पर इस टेक्स्ट बुक में, हमारे नेशनलिज्म के टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, सनातनी का मतलब हाई कास्ट हिंदूज। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने मार्क्स पुट अप नहीं किया तो आप समझ सकते हो ना, लाइक यू हैव अटेंडेड थिंग्स। सो वी ऑल्सो हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिड द कांग्रेस इग्नोर द दलित्स फॉर सो लॉन्ग? सो दिस इज obviously, so why did the Congress ignore the Dalits for long? So long लिख दिया मैंने, ठीक है। So the answer to this is Congress feared that Sanatanis, the conservative high caste Hindus, ठीक है, high caste Hindus को हम सनातनी कहते थे तब, so would offend their move का मतलब है जो हाई कास्ट सनातनी है उन लोगों को क्या लगता था, वो अपोज फील होंगे, क्योंकि लाइक इट वाज लाइक विद द अनटचेबिलिटी एंड व्हाट नॉट, बट गांधी जी लाइक गोइंग फॉरवर्ड ही डिड वन नाइस थिंग अबाउट दैट, only nice thing about that. So the next is, what was the Gandhi-Irwin Pact? So we this is really important. What was the Gandhi-Irwin Pact? So I had a student who wrote an answer just like this. So the thing goes, the civil disobedience movement started by Gandhi faced brutal response from the British. Brutal response का मतलब कोई like harsh रिस्पॉन्स, ठीक है, लाइक उन्होंने क्या किया, एक हड़ताल चल रहा था, पीसफुल प्रोसेशन इन द स्ट्रीट्स, एंड दे किल्ड ऑफ मेनी पीपल, इनोसेंट पीपल एक्चुअली, एंड दैट वाज उसको हम फेस्ड ब्रूटल रिस्पॉन्स कहते हैं। जो हम एक एक्शन कर रहे थे उसका जो एक रिस्पॉन्स है या फिर रिएक्शन था वो ब्रूटल था, जो रिएक्शन था ब्रिटिश ने दिया था, ठीक है। चलो, there were large-scale attacks on the satyagrahis. Obviously, satyagrahis were the one who was protesting and whatnot. So there were a large-scale attacks. Even women and children were not spared and beaten badly. All right. So, and thousands of the protesters were arrested. Obviously, when going forward, Gandhi ji was arrested. Many people of the Congress was also Congress in Indian National Congress were also arrested, obviously after the Salt March uske वगैरह. The situations forced Gandhi ji to call off the movement and sign a pact. So this situation forced, I'll read it again, I'm sorry for the disturbance. So the situation forced Gandhi ji to call off the movement and sign a pact with Lord Irwin. So Lord Irwin जो है वो एक वाइसरॉय था या फिर अब रूल कर रहा था इंडिया पर, I mean like the मिड जो है इंडिपेंडेंस का एरा था, तब इरविन he was the kind of a head of the British government in India. The pact came to be called as Gandhi-Irwin Pact. According to the pact, Gandhiji agreed to take part in the second round table conference in London. In turn, the government agreed to release all political prisoners imprisoned during the movement. Obviously, there are more to this Gandhi-Irwin Pact as he has wrote in this answer, but Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji demanded many other kind of demands, right? He asked for freeing these political prisoners and whatnot, and he asked for the tax kind of returns and to decrease the tax, right? And all of these you can write Gandhi-Irwin Pact and see how he gave the introduction, even if this question is for the 3 marks. All right, why did cooperation gradually slow down in the towns? Why am I skipping questions? Okay, we'll do that in a second. So even if this was for the 3 marks, he gave it a good introduction. All right, that is what kind of students lacked. आप क्या लिखते थे हो, लाइक क्या गांधी इरविन पैक्ट था, ये हुआ, इसने लाइक ये अग्री किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स निकालने के लिए गांधी जी ने कहा, इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने को गांधी जी को कहा, ये सब बस आप लिख लेते हो, आपको भी नॉलेज है, पर आपके एक आंसर को वेटेज कैसे दिलवाया जाए ये आपको सोचना है.
वेटेज का मतलब है राइट पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपको जब लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं वो साइंस में या फिर हिंदी इंग्लिश में, सो मेनली सोशल इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या करना है, आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया लाइक कोई इंग्लिश में समझ लो कोई इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को कि ये क्यों हुआ, ठीक है। लाइक जो द लेंचो वाला चैप्टर है ना, लेटर टू गॉड, उसमें क्या पूछा गया, लाइक क्या हुआ, क्यों लेंचो ने एक लेटर लिखा डायरेक्टली गॉड को। आपको एक 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने हैं। ये तो 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। लाइक लेंचो ने ये कर दिया, इसका फील्ड इसमें एक हेल स्टॉर्म आया और वगैरह वगैरह के क्या कर देते हैं, आपने आंसर लिख देता है। पर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर कैसे बना है, ठीक है। तो you have to give it more weightage, you have to make it more good, right? So इसीलिए आप क्या करते हो, लाइक इंट्रोडक्शन देते हो या फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि दिस इज फॉर द 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वगैरह वगैरह। सो they ask like other different questions. So you give it a good introduction, like Lencho was a farmer and he was this person who lived in the mid of nowhere in the valley. Hailstorm came one day, destroyed his crop field, and that's why he was like very much sad about it, because it was the harvest kind of a season and he only hoped for like a just a downpour or a shower, but a hailstorm came. all right so ये इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है। लाइक ये हुआ इसीलिए लेंचो एक डाउनपोर चाह रहा था, पर गॉड ने क्या किया, एक हेल स्टोन्स का स्टॉर्म ही भेज दिया उसके क्रॉप्स के ऊपर। और हाँ, ये लेंचो जब ये लाइक शावर आया पहले लेंचो ने क्या कहा, लाइक ये बड़े ड्रॉप्स जो है वो 10 pesos के हैं एंड द स्मॉल ड्रॉप्स आर लाइक द 5 pesos। ये हुआ इसीलिए जब लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखा, तब जो पोस्ट मास्टर था ही वॉज वेरी लाइक fun, but he got very serious and he literally appreciated the amount of faith Lencho had in God वगैरह वगैरह। So ये सब आपको लिखना चाहिए यार, like you have to give it a proper introduction before you actually write the answer, right? And then you kind of have to conclude it. That is why Lencho did this, Lencho did that, postmaster did this, वगैरह वगैरह क्या लिख दो। like उसको सोशल में भी आप हिंदी में भी करते हो, छोड़ो, अब सोशल में भी वैसा ही करना है, ठीक है। एंड आपको 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की क्वेश्चन भी 2 लाइन या 3 लाइन लिखकर नहीं आने का है। उसका मतलब नहीं है 2 lines is never equal to 2 marks. If I was your goddamn teacher, I would give it a half marks and move on, even if you have the right points. Because social में बच्चा आपको elaborate करना पड़ता है. If you go take social as your further subject, like I did in 11th and 12th. So आपको क्या करना पड़ता है? You have to elaborate the answer. Even if you have to apply for UPSC and whatnot, you have to write about the Sanathanis for 2000 words. 2000 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, या फिर टूरिज्म इन इंडिया और टेररिज्म इन इंडिया, उसके ऊपर 2000 वर्ड्स में लिखना है। हाउ विल यू? टूरिज्म आप तो एक 2 लाइन में कंक्लूड कर रहे हो, टूरिज्म इज वेरी गुड इन इंडिया कह के, है ना। तो आपको एलॉबरेट करना सीखना चाहिए किसी भी चीज को। इन लाइफ यू नीड टू काइंड ऑफ लर्न टू एलॉबरेट एवरीथिंग। All right, so the next question कर लेते। We got a little sidetracked और English में एक chapter का भी revision हो गया आपको। चलो, so why did the non-cooperation movement gradually slow down in the towns? 1 minute. Okay,
So why did the non-cooperation movement gradually slow down in the towns and cities? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं करेंगे, और लॉयर्स स्टूडेंट्स ने लॉ प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, टीचर्स ने अपनी डिग्रीज वो जो अवार्ड्स थे या फिर कोई अवार्ड्स देते थे ना ब्रिटिश पीपल लाइक टू अप्रिशिएट द इंडियन पीपल काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इवन लॉयर्स, उन्होंने सभी को छोड़कर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया. तो क्यों ये काइंड ऑफ अ स्लो से ये क्या है स्लो डाउन होकर बंद हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों ऐसा हुआ? तो सो द फर्स्ट रीजन इज khadi cloths were very costly and beyond the reach of the poor. Obviously the poor also participated in this, right? Not only like rich people who are like, oh, we are gonna give up our law degree and we are gonna work, not even work because we are rich and we are gonna support this whatever this Gandhi guy is doing, है ना? ऐसा नहीं होता था सर. सभी क्लासेस के people, even Dalits, even young people who didn't have access to a lot of money, they were also participating in this movement, right? So in the course of time, people again took the machine made cheap clothes. Obviously machine made cheap cloth का मतलब है जो ब्रिटिशर्स बेच रहे थे उसको फिर से खरीदने लगे इंडियन पीपल ने, ठीक है. Next is boycott of daily use products was also not possible because of lack of Swadeshi industries. Okay, India had to roll back. मतलब क्या होता था, ब्रिटिश ने तब तक जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था तब तक ब्रिटिश ने क्या किया, पूरी मार्केट में ब्रिटिश गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स थे, जो जब लेबर वर्क बहुत कम होता है तब उस जो कॉस्ट है ये क्या है इस प्रोडक्ट को बनाने का वो बहुत कम होता जाता है. जब आप मशीन मेड कार्स को देखते हो तब उनका रेट मतलब कम होता है. लाइक इफ यू लुक एट द रेट्स ऑफ फरारी something, there every model is individually made by laborers. That's why it's much costly. I mean, it has some of the most like horsepower वगैरह वगैरह ज़्यादा है, या फिर स्पीड और कुछ भी हो वो ज्यादा होगा. पर अब जब लेबरर्स को यूज कर कुछ काम या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट हाई होगा, क्योंकि उन लेबरों को भी एक वेज चाहिए ना. तो इसीलिए हमने पहले बताया था खादी बहुत कॉस्टली था क्लॉथ, जो वेव करना पड़ता था. तो मशीन मेड क्या था वो ही कर लेता था, इसीलिए मशीन मेड क्लॉथ वर चीपर, एंड so that's why people took it up, and many like kind of what is that common चीजें, ठीक है. लाइक अब जब डेली हम यूज करते थे, मतलब लाइक सॉल्ट या फिर वगैरह वगैरह हो गया, उन सभी को लाइक इंडियन जो लोग थे उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थे तब. लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुआ था. आई मीन इंडिया में तो लाइक थे बहुत सारे पीपल, लाइक नॉर्थ में या फिर चेन्नई में सी पोर्ट्स में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे. पर क्या हुआ था, उतना लाइक डेवलप तो नहीं था इंडस्ट्रीज, तो इसीलिए ये कॉमन चीजें थे. वो सब क्या हुआ, काइंड ऑफ इट ग्रेजुअली स्लो डाउन. सो पीपल जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन सभी को लाइक वो खरीदने लगे ब्रिटिश से ही, ठीक है, क्योंकि वो चीप था, मशीन मेड था, और इंडस्ट्रीज और ये मार्केट जो था वो बहुत बड़ा था जो ब्रिटिश का था तब. अब नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स could not continue for long. There was no alternative institution to fill up the gaps, so teachers, students and had to resume the government school. Lawyers reported back to the government courts. See क्या हुआ, अब जब ये करते हैं लाइक स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, उनको जॉब नहीं होते, लाइक मनी दे हैव टू अर्न. लाइक दीज गांधी गाय और दिस कांग्रेस पीपल वर नॉट गिविंग money to these people to participate in this movement. It was like free and like nationalism चाहिए, हमें freedom चाहिए कह के जाते थे, पर पैसे उनको भी चाहिए ना. Like at the end of the day you have to look after yourself. So इसीलिए वो like
in need of this, they went back to their jobs. And वो alternate institutions नहीं थे, मतलब कोई और स्कूल नहीं था, कोई और मतलब टीचिंग का प्रोफेशन को चेंज करने वाला नहीं था. और ये लॉयर्स भी इंडियन कोर्ट तो तब तो नहीं था, वो ब्रिटिश कोर्ट्स ही था ना, इसीलिए दे ऑल वेंट बैक. दैट इज वाई ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन दिस टाउन्स एंड सिटीज. ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन था. ठीक है. सो अब जब ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, आप 3 पॉइंट्स रिमेंबर करते हो, तब क्या करोगे आप? अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखोगे, 3 पॉइंट्स, कंक्लूजन दोगे. या फिर आपको 5 पॉइंट्स पता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 5 पॉइंट्स, छोटा सा कंक्लूजन लिखना मत भूलना किसी भी सब्जेक्ट में. मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में आप काइंड ऑफ द क्या है, एक स्पेसिफिक आंसर देकर आप मूव ऑन कर सकते हो. सो साइंस में स्किप कर सकते हो कंक्लूजन देना, या फिर कोई एक्सप्लेन करने में देते हो, इसीलिए क्वेश्चन से अग्री कर मतलब दोज वर द सनातनीज, हाई कास्ट हिंदूज वर द सनातनीज, like that. And then why did the Congress ignore you give the reason like ये अपोज हो जाते थे हिंदू हाई कास्ट पीपल. that is why and that is why the Indian National Congress मतलब कांग्रेस ignored the Danis for so long. ठीक है. ये ऐसे कंक्लूड देते हो. मैथ्स में भी जब भी आप एक सम करते हो ना, ये वगैरह वगैरह, 490 समथिंग आंसर आया, मीटर स्क्वायर का आंसर आया, जब आप द एरिया ऑफ द समथिंग सेक्टर वगैरह वगैरह, इसका एरिया क्या है, 490 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देनी चाहिए. अब जब भी ये कैलकुलेट कर लिख लेते हो, ऊपर भी आपने नहीं लिखा होगा लाइक एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा, और ये आपने थीटा बाय समथिंग का फॉर्मूला लगवाया, और ये 490 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर और या मीटर स्क्वायर, कुछ भी आपको आ गया आंसर. आप ऐसे राउंड अप कर जाओगे, क्योंकि यू आर वेरी, आई नो द प्रॉब्लम्स यू फेस, आई नो इट्स रियली हार्ड टू रिमेंबर. लोग कहते हैं लाइक इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, ये पॉइंट, ये गलती नहीं करना, पर आई अंडरस्टैंड. आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई ऑल्सो अटेंडेड द बोर्ड एग्जाम्स. तो उसमें क्या होता है, यू फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन यू हैव द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स हार्ड बीटिंग लाइक ये क्वेश्चन पेपर आसान होता है या फिर मुश्किल होता है, या फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या होगा, मैं फेल हो जाऊं, ये थॉट्स आने लगते हैं आपको. इट्स नेचुरल बच्चा. इवन इफ यू डू अ मिस्टेक, डू नॉट वरी, ऑलराइट. इफ यू करेक्ट इट देन फाइन, बट प्लीज डू नॉट वरी. ओके, आफ्टर you're done with the exam, just go straight home, or just roam around with your friends for like an hour or something, because you get some kind of a period of time to revise for the next exam, right? So do that. Just go to a cafe or just sit in a quiet place for a moment and just forget about the exams, all right, when you're in that moment enjoying, because you need a little break, because you're in that room, there are 2 invigilators, it's very nervous, like you see many children's faces beside you, and you just done this exam paper, आपने एग्जाम पेपर दिया है अभी, सो आप सोच रहे होंगे लाइक क्या होगा, ये बोले. सो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम ये कुछ भूल जाना, ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है. इट हेल्प्स यू फोकस, इट हेल्प्स यू डू गुड इन द नेक्स्ट एग्जाम. आपने क्या कहा, मैथ्स है और उसके परसों सोशल है. आपने क्या करते हो, अरे मैथ में ये जाए, आप सोशल पढ़ रहे हो, ये द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आपने पढ़ रहा हूँ, अरे यार मैथ में ये क्वेश्चन गलत किया था, ये क्या आया, आंसर रॉन्ग आया, तो इट्स रियली बैड. सो क्या हुआ, आपने कर दिया, आप आंसर्स भी मत चेक कर लो, आपको कॉन्फिडेंस है तो चेक कर लो, या फिर नहीं है आपको, लाइक यू आर नॉट गुड विथ कॉन्फ्रंटेशन, नहीं करना. कुछ भी नहीं होगा. ये आंसर्स चेक करने में क्या लाइक उसमें कुछ चेंजेस होती है क्या? नहीं, कोई आकर भी नहीं पूछेगा आपको आपने क्या किया या फिर नहीं. कंपल्सरी चीज तो नहीं है. ठीक है, मत करना, छोड़ दो. लाइक मैथ्स हुआ, मैथ्स सभी बुक्स को किसी अलमारी में रख दो, और आपने ये कुछ चिपकाए हुए ना, उसको
तोड़कर फॉर्मूला शीट्स कुछ भी वगैरह लाइक फेंक दो यार, हो गया 10th, ठीक है। आई मीन आप जब साइंस लेंगे तो इस्तेमाल होगा, पर फिर भी फेंक दो, ठीक है। या फिर ऊंची अलमारी में रख दो, वहां पर दे रखे हैं ना, वहां पर रख दो वैसे चीज में। तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। लाइक ये हो गया साइंस में, अरे यार साइंस में ऐसा किया, और इंग्लिश पेपर को भी ऐसे और किसी और पेपर को भी ऐसे ऐसे कर कर घुमा देते हो। लाइक यू गेट लॉस एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, है ना। लाइक आप जब एग्जाम दे, अरे मैंने मैथ्स में ऐसा किया था, मैंने अच्छे से नहीं लिखा, मेरे हैंडराइटिंग गलत। पीपल से दैट इन CBSE you have to worry about your handwriting, बट नहीं बच्चा, ठीक है। आपका आंसर लेजिबल है, अच्छी बात है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग दैट इफ योर आंसर इज लेजिबल। जब आप ऐसे ऐसे लिखते हो, दा को ऐसे लिखते हो, नहीं, ये सब नहीं होता, दा को ऐसी लिखनी चाहिए। इफ दिस इज गुड, दैट इज ऑल्सो लेजिबल। द कांग्रेस ऐसे, ठीक है। आपको अपनी हैंडराइटिंग में इम्प्रूव करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, आप कुछ गवारे बच्चे की कुछ किसी और की तरह उठाकर बैठ दिया नहीं है। यू नो हाउ टू राइट लेजिबली, यू हैव टीचर्स हैव मेड यू राइट। इफ यू आर इन द स्टेट सिलेबस, लाइक आपको मार पीट कर अच्छे से लिखवाई जाती है। लाइक पेंसिल को ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड करते हो कुछ बच्चों, मैंने देखा है। तो उस स्टेट सिलेबस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हैंडराइटिंग बहुत सारे अच्छे लिखते हैं हम CBSE वाले से या फिर ICC वाले से। बिकॉज लाइक CBSE स्कूल्स में क्या होता है, आपका हैंडराइटिंग को तो चेक नहीं करते वो, ठीक है। CBSE इज वेरी फोकस। जो मैं स्कूल में पढ़ता था तब हैंडराइटिंग नहीं, लाइक लेजिबल है ना। अच्छा, जब हैंडराइटिंग का विचार आता था तब, जब आपका हैंडराइटिंग बहुत लाइक जो क्वेश्चन पेपर को चेक करते थे तब उनको मुश्किल आए, लाइक ये कांग्रेस लिखा है या फिर कुछ और लिखा है, इग्नोर या दलित क्या है ये। जब वैसा आता है तब हमारे टीचर्स क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। तो मेरा हैंडराइटिंग तो इट्स वर्स देन आई थॉट, सो इट्स काइंड ऑफ वर्स इवन ऑन पेपर। सो डू नॉट वरी, डू नॉट लाइक ओ इन्होंने कहा, ये भैया ने कहा, ये है वैसा है वैसे नहीं। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, गुड थिंग। इफ इट्स इवन वर्स, जस्ट ट्राई टू मेक सम चेंजेस इन द वे यू राइट। आप स्लो से आप पेस में लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये सब बोलना मत, मतलब आप काइंड ऑफ यू इन दैट मोमेंट यू फॉरगेट एवरीथिंग। सो या जस्ट ट्राई टू डू दैट। एंड आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे इस वीक, मतलब लाइक इस वीक और हो गए हैं, उन सभी में आप इसको करने को लाइक बोलना मत, ठीक है। We leave what was the Simon Commission and why was it opposed? So इसका आंसर हमें ढूंढना है। साइमन कमीशन का मतलब है जो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन दैट गांधी जी वाज had to attend. A government or a Tory government was there, and that created a new kind of a commission that is called the Simon Commission, because the person named Simon, who was the head of that commission, and it was named after him. All right, so a sanctuary commission under Sir John Simon was constituted by the Tory government in Britain to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. All right, so this was ये क्यों हुआ था? क्योंकि टोरी गवर्नमेंट आया था, उनको लगता है पसंद नहीं था ये क्या क्या हो रहा है, ब्रिटिश क्या क्या कर रहे हैं इंडिया में, तो इसीलिए उसको अपोज करने के लिए एक नया सा सैंक्चुअरी कमीशन बनाया गया। जैसा UN कमीशन होता है, यूनाइटेड नेशंस का कमीशन जो होता है, वो सारी कंट्रीज़ की ओवरऑल वेलबींग या कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर कुछ कमीशंस भेजती है जो इट लुक इनटू टू दैट प्रॉब्लम। लाइक क्या है, इजराइल पैलेस्टाइन का ये वॉर हुआ ना, उसके ऊपर भी सम ईयर्स बैक एक
कमीशन हुआ था, उसका नाम था यूएन कमीशन, लाइक इसराइल पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप के बारे में एक यूएस कमीशन भेजा गया था, ठीक है। और इस ये कमीशंस क्यों होते हैं, लाइक टू जस्ट लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये जो इंडिया में था वो ब्रिटिश का ही था, उसमें ही चेंजेस सजेस्ट करने के लिए इस क्या है गवर्नमेंट को बनाया गया था, टोरी गवर्नमेंट को, ठीक है। ओके, बट इट वाज अपोज्ड बाय ऑल इंडियंस, क्योंकि पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर इंग्लिशमैन। ऑब्वियसली क्योंकि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इंडिया में बिफोर, जो रौलत एक्ट, वो सभी पास मार्शल लॉ को सभी पास किया था उन्होंने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस थे, लाइक इलेक्टेड इंडियंस, कोई भी इलेक्टेड इंडियंस ही थे रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो वर्क करते थे। पर इसके अंदर क्या था, सिर्फ इंग्लिशमैन थे, ठीक है, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, जो ऑब्वियसली दे विल मेक अ लॉ दैट इज सुटेबल फॉर देयर काइंड ऑफ अ रूल, फॉर देयर थिंग। सो Indians did not like that, and the next is it did not provide any hopes for Swaraj to Indians. Obviously ये गवर्नमेंट आने से तो ब्रिटिशर्स का राज और भी गारंटी होता जाएगा, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट आ गया तो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस पड़े होंगे, रिवोल्ट नहीं होगा, कुछ और होगा ना, इसीलिए पूर्ण स्वराज जो है या फिर सिर्फ स्वराज, ठीक है, उसके लिए बहुत डिले होगा। ये कमीशन आया तो लोगों ने क्या किया, बोर्ड्स में गो बैक साइमन ऐसा लोगो लिखकर ये बोर्ड्स पे खड़े हो गए जब साइमन कमीशन आ रहा था, ठीक है। सो व्हाई वाज द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब लाइक इंडियन peasants were like kind of forcefully recruited to work in the plantations of indigo, like in Champaran, या फिर कॉटन के नॉट फॉर कॉटन प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन में वर्क करने के लिए फोर्सफुली रिक्रूट हो गए थे। ये ट्रबलसम था क्योंकि इस इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लोग जो होते थे वो बिना परमिशन के प्लांटेशन की जो बाउंड्री था उससे बाहर नहीं जा सकते, और परमिशन उतने बार भी दिया नहीं जाता था लोगों को, इसीलिए ये ट्रबलसम था जो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, ठीक है। Why did Gandhi decided to withdraw from the movement in 1992? So the simple kind of a explanation is, okay, wait a second, I'm getting some notifications right here. Okay, so why did Gandhi decide to withdraw from the movement in 1992? Because in the movement in 1992 it faced a lot of kind of a setback from the British. Okay, they started to oppose even strongly, and many were hurt, many were surrendered, many were arrested and political prisoners. That's why he withdrew this. All right, and he also withdrew the non-cooperation movement in like because of the Chora Chori movement, after the Chora Chori movement, right? And he said that the satyagrahis need to be trained properly if they are going to succeed in this, right? That's why he decided to withdraw this movement in 1992. So describe the main features of the Salt March. आपको पता है Salt March क्या है? आप कितने क्या है दिनों से पढ़कर आ रहे हो, कितनी साल से पढ़कर आ रहे हो सॉल्ट मार्च के बारे में, ठीक है। सो हमें क्या करना था, सॉल्ट मार्च को एक डिस्क्राइब करना था, मेन फीचर्स जो है। एक पहला है महात्मा गांधी जी wanted to have a common base that to bond over the poor and the rich people. So he wanted to find something common that we all have in common. That was common salt, NaCl, ठीक है, NaCl. It became like a kind of a common symbol between it. It was used by the rich, it was used by the poor and whatnot. So obviously he wanted to
find that and he found it in salt. मतलब जब तब ये हुआ तब क्या हुआ था, सॉल्ट पे भी कुछ कुछ टैक्सेस होते थे, ठीक है, and all of those taxes kind of he wanted to get rid of those taxes, so he wanted to go for a salt march. All right, Mahatma Gandhi started his famous salt march or Dandi march on 11th March 1930, accompanied by 78 of his trusted volunteers. 78 ही नहीं थे, बट ज़्यादा से ज़्यादा 200 के ज़्यादा थे ये लोग. एंड द मार्च was to cover 240 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati, obviously, to the Gujarati coastal town of Dandi. On 6th April 1930, he reached Dandi and ceremonially violated the law by manufacturing salt by boiling seawater. और ये भी फैक्ट है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे कॉमन सॉल्ट को, ठीक है. और this marked the beginning of the civil disobedience movement. All right. So again, civil disobedience movement was discontinued, and it was continued again, continued, and the final ultimatum that this Gandhi ji gave was, the Quit India movement that started in Mumbai. Obviously, they can ask for the map also, so remember that. All right. So Gandhi ji decided to participate in a round conference after, obviously, Gandhi-Irwin Pact. ये है 1 मार्क्स का है, ये MCQ था, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है. 2 मार्क्स के लिए एक और सब क्वेश्चन ऐड कर कर पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज व्हाइट साइमन कमीशन के बारे में बात क्या है. सो हु अनाउंस्ड अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929, that is obviously Lord Irwin. Okay, जो गांधी इरविन पैक्ट था उसका इरविन, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का है. सो डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट. जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में जिस मेन फीचर्स बता रहे हैं वो है, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो पूना पैक्ट के बारे में, ठीक है, देना. द पूना पैक्ट सितंबर 1932 gave depressed class, later be known as scheduled caste, reserved seats in the provincial and central legislative councils. That means जो ये legislative councils था उसमें रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है. सो जो रिजर्वेशन देते हैं अभी वुमेन या शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST ऐसे लोगों को उनको रिजर्वेशन मिला, ठीक है. तो द नेक्स्ट वन इज दे वर टू बी वोटेड इन ए जनरल इलेक्टोरेट. मतलब जो ये जनरल असेंबली होती थी उसमें वोट कर सकते थे और कॉमन बॉडी सिटीजन से भी वोट किया जा सकता था. The next is the act came into force due to Gandhi's fast on to death. Okay, fast on to death. उसके लिए ये एक फीचर्स मतलब चलो देखो फीचर्स और ये एनालाइज या फिर स्टेट द चेंजेस, इनमें से बहुत सारे डिफरेंस है. फीचर्स का मतलब है सारे के सारे, लाइक ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ, किसके लिए हो रहा है, ये सब फीचर्स है, ठीक है. ये या फिर चेंजेस है, जो चेंजेस होगा. चेंजेस का मतलब है यहाँ पर देखो, चेंजेस का मतलब है जो डिप्रेस्ड कास्ट था उनको क्या मिला, रिजर्व सीट्स मिली, ये था चेंजेस. क्यों हुआ, दिस वाज डन टू वोट बाय द जनरल इलेक्टेड, ये भी हो सकता है. और द नेक्स्ट इज द एक्ट केम इनटू फोर्स ड्यू टू गांधीज फास्ट डेथ. ये है फीचर्स बात कर रहे हैं हम, सो ये भी लिखना होगा, ठीक है. हम क्योंकि फीचर्स के बारे में तो पूछ रहे हैं ना, इसीलिए हमें ये भी लिखना है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज द एक्ट केम इनटू द नेक्स्ट इज डॉक्टर B.R. Ambedkar ultimately accepted Gandhi's stand. Alright, obviously B.R. Ambedkar, he was kind of opposing Gandhi ji on some of the matters. So yeah. Wait a second. Okay. So the next we have a map thing right here. So we have the peasant satyagraha right here. So we have 3 things to be marked. A, peasant satyagraha.
पेजेंट सत्याग्रह मतलब खेड़ा, ऑब्वियसली ए इज खेड़ा। आप लाइक यू जस्ट रिमेंबर मैप जो गया है वहाँ पर भी लिखना, और फिर से क्या है वो आंसर शीट है ना उसमें भी लिखना, मतलब ये पेजेंट सत्याग्रह खेड़ा में, ठीक है, ऐसा लिखना है, ठीक है। और बी मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स का क्या हुआ, बी क्या है, चंपारण, चंपारण, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज प्लेस वेयर जलियांवाला ट्रेजेडी टुक प्लेस और जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, ये है अमृतसर, अमृतसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी सपोर्टेड इन 1990? सो खिलाफत मूवमेंट जो है वो टर्की जो लाइक वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें ऑटोमन एम्परर का फॉल हुआ था, तब क्या हुआ, एक खिलाफत कमेटी हो रहा था मुंबई इंडिया में, क्योंकि उस उन जो स्पिरिचुअल हेड था खिलाफत उनको अरेस्ट किया गया और कुछ hard kind of restrictions was supposed to be placed on him. That's why Khilafat committee to revolt against all of these things that was happening to the religious head of their thing in the Muslim Ottoman Empire. They wanted to oppose that, so they created a kind of a group, the Khilafat committee, right? So this was supported by Gandhi in 19 I think the question is wrong. Yes, it is not 1990 बच्चा, because 1990 तो गांधी तो अलाइव ही नहीं था। आई एम सो सॉरी, ठीक है, वेट अ सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द क्वेश्चन। इट्स 19, आई थिंक इट्स 1919 बच्चा, सॉरी इट्स 1919, okay, because obviously it's not, it's not 1990. It's saying Gandhi died right before that. So it was supported by Gandhi because he mainly had a aim जो था उस गांधी का वो था वो क्या था, ये जो बॉन्डिंग था हिंदू और मुस्लिम में उसको बढ़ाने के लिए ये एम था। सो व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज एंड टाउन्स? ये हमने किया था क्वेश्चन, सॉरी ये हमने किया था क्वेश्चन। व्हाई डिड सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस अपोज द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन? सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो एक फिर से स्टार्ट हुआ रहा था, ये बहुत सारे लीडर्स जो जवाहरलाल नेहरू वो सब थे वो अपोज करते थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नॉट सुभाष चंद्र बोस, some of the people within the Congress, they wanted to go into the legislative councils because it was starting in December of something, and December में क्या था, वो legislative elections थे, ठीक है, वो जो legislative वो kind of elections थे, उनमें इंडियन कांग्रेस वाले भी पार्ट लेना चाहते थे। इसीलिए जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब वो भाग नहीं ले सकते थे, इसीलिए, ठीक है। व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑब्वियसली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑब्वियसली यू आर डिसोबेइंग द ब्रिटिश काइंड ऑफ थिंग, और द एक्सप्लेन क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस लाइक द चौरा चौरी इंसिडेंट और द हड़ताल इंसिडेंट, and all of these made Gandhi to see that it's very brutal, kind of like Britishers are fighting back and they're also suppressing all of this, and many of the people are getting arrested, killed, injured, and and things like that. So that is why one of the reasons is that is why he called off this civil disobedience movements. Obviously this is for 3 marks, 3 marks का ये है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, हाँ। तो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और भी पॉइंट्स है। सो द अरेस्ट ऑफ अब्दुल गफर खान इन पेशवा रिजल्टेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ पुलिस अथॉरिटी बाय द क्राउड, मेनी डाइड इन द क्लैश।
Obviously, as I told you, these revolts, these attacks, these killings, and all of these massacre things that British was a part of, British people was a part of, he wanted to call off this because he didn't want anyone getting hurt. Okay, so moving on, we have another map. So two features A and F are marked. See, आपको A और B के अलावा यहाँ पर A और B लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर E और F दिया है, तो आपको you have to remember. So the first is place where the Indian National Congress was held in December 1920. दिसंबर, आपको जो सितंबर का दिया था, 3 कांग्रेस के सेशंस या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे. एक था कोलकाता में, एक था चेन्नई में, और एक था नागपुर में. सो ये नागपुर में है जो महाराष्ट्र में है. सो दिस इज नागपुर में, ठीक है. द प्लेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड. ऑब्वियसली दिस इज अहमदाबाद क्योंकि लाइक कॉटन मिल्स वो तो अहमदाबाद में ही थे. आप ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर सकते हो ये. तो अहमदाबाद में ही थे कॉटन मिल्स, लाइक सो मेनी कॉटन मिल्स वर देयर. एंड गांधी जी जब आए थे तब 1916, 17 और 18 में यहाँ पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया टू रिवोल्ट और टू काइंड ऑफ फाइट अगेंस्ट द harsh working conditions of the cotton mill workers in Ahmedabad. My handwriting is worse than I thought. Okay, that is it for nationalism in India. And so sorry, not in the next session. So in a bit I'll be coming up with some two chapters, that is the making of the modern world, or print culture and the modern world. All right, so in this kind of a session we will be covering the important PYQs of print culture and the modern world. इसके PYQs करने वाले हैं हम पिछली बार हमने nationalism in India और the rise of nationalism in Europe की हमने किए थे, ठीक है. हाँ, चलो. So diving in, who invented the printing press? Obviously the printing press, or the first printing press, was invented by John Gutenberg. Alright, किसने ये प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था? जॉन गुटनबर्ग ने, ठीक है. और उन्होंने कौन सी बुक की फर्स्ट प्रिंटिंग की? द बाइबल, ठीक है. जो बाइबल है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, वो बाइबल जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंट किया था, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट एडिशन, ठीक है. चलो, हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? चलो, इनका तो हमने पॉइंट्स में समझना है, राइट. सो हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस जो आए थे, ये जॉन गुटनबर्ग भैया ने हमारे लिए बनाया था प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप में. क्या हुआ, इसका एक नया सा कल्चर कैसा आया, ठीक है. लाइक वी नीड टू गिव इट इंट्रोडक्शन, लाइक आई टोल्ड यू इन द पास्ट few minutes or something. You have to give a proper introduction in social, even if it's for the 2 marks, or even if it's for the 2 marks or 3 marks or the 4 marks, ठीक है. और इवन इन ये जो सेशन करने वाले हैं हम, इसमें हम केस बेस्ड स्टडी भी कर लेते हैं. एक प्रिंट कल्चर से आने की चांसेस तो बहुत है. ये प्रिंट कल्चर से 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है. चलो, हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट्स की तरह लर्न करना है. इसको आप दे दोगे, ये जॉन गुटन भैया ने ये क्रिएट कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस, और दिस ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस टू यूरोप. आई मीन इट क्रिएटेड न्यू कल्चर इन यूरोप, न्यू रीडिंग कल्चर इन यूरोप. दैट इज, first is increase in literacy rate. Obviously if we see the literacy rate in Europe, it was like after this printing press came, it went up to 60 to 80%, right, the literacy rate in Europe, and it became like a mandatory thing after like the
19th century and after the mid 21st century, right? Everyone went to schools, colleges, higher educations. They got that, they are done with it, right? So the next is new forms of literate. I mean, in England, penny chapbooks were sold by petty peddlers known as champmen for a penny. ये तो टंग ट्विस्ट हो गया भैया. Penny chapbooks were sold by penny peddlers known as champmen for a penny. है ना. तो ये पेनी चैप बुक्स का मतलब है छोटे छोटे बुक्स जो न्यूज़ रखते थे, उसमें हम कॉमिक्स था, स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी था, वो उनको ये चैप बुक्स बोला जाता था. सिर्फ एक पेनी के लिए भेजा जाता था जो चैम्पमैन थे उनसे, ठीक है. और ये क्या हुआ, ये एक्सेसिबल हो गया. जब ये एक्सेसिबल होती है चीज, पुअर, रिच, और ये कुछ लोग एक्सेस कर पाते हैं इन चीजों को, राइट. ये डायमंड है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं. जो डायमंड हो गया उसको हमारे पास, सभी के पास तो नहीं है. कोई person who can afford to buy those diamonds will have that, right? If a poor person could afford to buy a diamond, if that was accessible, that was so cheap, he would have bought it, right? Exactly, that's what they're trying to say. And then we have the periodicals, and the periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment about wars and trade, like I told you, and even including the chap books, like I told you. All right. So, and there were also publications such as these scientists with a new discovery in the 17th, 18th, in the 19th, and even in the 20th century. They discovered a lot of things, like Sir Isaac Newton, Walter Jean-Jacques Rousseau during the French Revolution. They all published their publications, like discoveries, their thoughts, all of this, and this created a new reading culture in Europe. ठीक है, चलो. The next question is, explain briefly the initial efforts made by foreigners to introduce printing press in India. चलो, ये foreigners का मतलब है जो people who came to India to kind of क्या colonize us. ठीक है, तो ये हो गए foreigners. पहला पॉइंट है, द पोर्चुगीज मिशनरीज फर्स्ट. इंट्रोडक्शन देना है, मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल के जा रहा हूँ. द पोर्चुगीज मिशनरीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन मिड 16th century. मिड 16th century का मतलब 1550s के आसपास, ठीक है. अब जब 16th century बोलते हैं, नहीं, इट्स नॉट 1650s, ठीक है. 16th century बोलते हैं उसके पीछे वाली सेंचुरी का, मतलब 16th century बोला तो 1550s हो गया, मिड 16th century, और लेट हो गया 1555 हो गया, 1555 लाइक दैट, ठीक है. और अब हम जो 21st century में है, जब वो लोग बोलते हैं लाइक द 70s का मतलब है 1970s, ठीक है. इट्स नॉट लाइक 2070s में ये होगा, नहीं, 1990s या 1970s, 1980s ये होगा, ठीक है. चलो, okay. The next is Jesuit priests learned Konkani and printed several tracts. ये जो आए थे ये priests या missionaries, they also learned Konkani. That's also in Karnataka and Kerala. They obviously arrived at the Malabar coast of Kerala. I mean the द्राविड़ यहाँ पर आए थे साउथ पे. By 1674, about 50 books had been printed in the Konkani and Kannada language. Kannada में जो भाषा, my mother tongue is Kannada, right? So the next is Catholic priests first published printed books in Tamil and Cochin. In 1713, first Malayalam book were printed.
ठीक है। ये सब जो मिशनरीज थे उन्होंने ही ट्राई किया था, ये अपनी जो आइडियोलॉजीज थे या फिर कुछ कुछ भी था, और लेटर ऑन ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने बुक्स प्रिंट्स किया, मतलब ये टेक्निकल के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जो ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज रखते थे उसके लिए प्रिंट रखा था, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज विच कंट्री posed a huge bureaucratic system। bureaucratic system का मतलब है जो विदाउट इलेक्शन इलेक्ट हुआ हो, मतलब लाइक द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो पोस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको लाइक सीरीज ऑफ सजेशंस के आर पार चुना जाता है उनको, लाइक द निर्मला सीतारामन या आर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर इन और होम मिनिस्टर अमित शाह, ये हो गए, ये सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं बनने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब। सो द नेक्स्ट इज केस बेस्ड स्टडी, पढ़ लेते हैं एक बार। बट द प्रोडक्शन ऑफ, एक मिनट, ओके, बट द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स could not satisfy the ever-increasing demand for books. Copying was an expense, laborious and time-consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation therefore remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, religious pictures with simple brief texts. There was a great need for a even quicker and cheaper production of text. So this could only be with the invention of the new printing technology. The breakthrough occurred in Salzburg, Germany, where John Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s. ठीक है, पता चल गया उनको, ये हमारे लाइक एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स था प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए, या टेक्सटाइल्स, वुडन ब्लॉक का इंपॉर्टेंस आया था, और जॉन गुटनबर्ग के बारे में। ठीक है, so the first question is, the production of handwritten manuscript could not easily satisfy the ever increasing demands for books. All right, books होता है। ठीक है, so the next is, by the early 15th century, dash were being widely used in Europe to print textiles, playing cards and religious pictures with simple brief text। यहाँ पर ही है, sometimes even in the case study they have given a text and there are also questions which are like unrelated to the text, right? But there are also questions sometimes which are highly related to the text. It's like इन लाइनों में ही कुछ questions दे दिया होगा, ठीक है, आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ही है wood blocks आंसर हो गया इसका। So in those days manuscripts were handwritten, they were not printed। handwritten होने के नाते ही वो बहुत मुश्किल हो गए थे ट्रांसपोर्ट करना, या फिर कॉपी करना, या फिर पढ़ पाना, समझ पाना, इसीलिए। ठीक है, इन यूरोप लग्जरी एडिशंस वर रिटन ऑन वेलम्स। वेलम्स का मतलब है जो क्या होता है यार, एक मिनट, हाँ, वेलम के ऊपर लिखा जाता था। ये है एक एनिमल फैट जैसी चीज थी, ठीक है, वो उसको वेलम कहते हैं। डैश वर स्किल्ड हैंड राइटर्स स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स जो लोग होते हैं वो प्रेस में काम करते थे, और वो इंट्रिकेट कैलिग्राफी से लिखते थे, ठीक है, कॉपी करते थे। Why was the Vernacular Press Act passed? ठीक है, सो हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं। हाँ, the Vernacular Press Act provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press। ठीक है, ये हम किस चीज में पढ़ते हैं यार, सेंसरशिप और प्रिंटिंग एंड सेंसरशिप में पढ़ते हैं। ये सेंसरशिप क्या होता है, ये बंद करवाना या फिर कुछ और पब्लिकेशंस नहीं करवाना, वो ना कि सेक्सुअल थिंग्स को हम लाइक यूट्यूब और कुछ और पर देख नहीं सकते, क्योंकि इट्स लाइक काइंड ऑफ सेंसरशिप, बिकॉज लाइक बच्चे होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, वो वॉच नहीं कर सकते, और मूवीज में भी अलाउ नहीं किया जाता इन सभी को, राइट? इसीलिए तो द गवर्नमेंट
kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. ये record रखना बहुत important था, because like if the newspapers publish something very controversial, they would disobey this act, they could be arrested, they would be faced with charges. If any report was judged and seditious, then quickly the newspaper was warned, like I told you. If the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery could be seized. Like I told you, they would have consequences. So how was the translation process of novels into regional languages helped to spread their popularity? Obviously, ठीक है, जब कन्नड़ा में प्रिंट किया गया था, like the first kind of a books were printing कोंकणी and कन्नड़ा. कोंकणी कर्नाटका में ही है, कोंकणी कहते हैं, लाइक ठीक है. वो सिर्फ कन्नड़ा जो पीपल होते हैं उनको सिर्फ समझ सकते थे. जब हमने मलयालम से को प्रिंट किया तब क्या होता था, केरला पीपल और कुछ तमिलियंस को भी समझ आता था. जब हम तमिल में प्रिंट करेंगे, तमिलनाडु में भी लोगों पढ़ सकते हैं हम. जब हिंदी में प्रिंट करें, बहुत सारे लोग पढ़ सकते थे. ठीक है, इसीलिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इट विल रीच आउट टू मोर पीपल इन अदर रीजन्स हु स्पीक दैट रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, राइट. सो द नेक्स्ट इज हाउ डिड द प्रिंट कल्चर, wait a second, all right. So the next question is, how did the print culture influence the French Revolution? Obviously this is very 5 mark का क्वेश्चन है. 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 को भी एलॉबरेट करना है. मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन की आंसर को, डायरेक्टली आप लिख सकते हो. सो द फर्स्ट इज print popularized the idea of enlightenment thinkers, मतलब enlightenment thinkers collectively. Their writings provide a critical monetary on traditional superstition and despotism. See, क्या है, ये क्रिटिकल थिंकर्स थे या फिर रेवोल्यूशनरीज थे, इन लोगों को एक काइंड ऑफ अ बेस मिला और आइडियोलॉजीज डेवलप करने में. ठीक है, दे अटैक द स्केर्ड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of the social order based on tradition. Legitimacy का मतलब ये क्या रियल हो सकता है, ये इनको क्या राइट है, ये legitimate है क्या, लाइक ये सच्ची है या फिर इनको हमने बिलीव करना चाहिए, ये होता है legitimacy. और उन्होंने क्या किया, ये सोशल ऑर्डर जो है, मतलब ये काम जैसी करती थी, लाइक मोनार्की के अंडर या कुछ और ब्यूरोक्रेटिक कमीशंस के अंदर, उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्वेश्चंस करना शुरू किया. ठीक है. और द सेकंड पॉइंट इज प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. ऑब्वियसली इट क्रिएट्स a dialogue and debate, and obviously they were like liberals, they were conservatives who are like, no, we are not going to give up the monarchy, blah 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 blah, we like this, we like that, we won't let women do this, we won't let women do that. We were also okay, liberals who were very liberal and wanted a change in the order, right? So the next point is, by the 1780s there was an outpouring of little and mocked the royalty of criticize their morality. मतलब वो जो मॉरल जो चीज होती है ना, उनको ही क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने. ठीक है. सो द नेक्स्ट जो पॉइंट है, कार्टून और कैरिकेचर्स typically suggest that the monarchy remained absorbed only in sensual pleasures while the common people suffered immense hardship. जो आपको एक रिमेंबर होगा, एक कैरिकेचर था या फिर एक कार्टून था, जो था एक किंग होगा, ऐसे बैठे होगा, मतलब लाइक हाँ, और ऊपर होगा एक मकड़ी के जाल और उस पर एक बटरफ्लाई या फिर कुछ फंसा होगा, और ये मैन जो था, लाइक ये रिच पर्सन, उनके आगे भी एक गरीब इंसान था अपनी वेजर्स या फिर कुछ कुछ अर्निंग्स दे रहा था उनको, लाइक फ्रूट्स और उन उगाए हुए चीज के साथ. ठीक है. सो that was a caricature that criticized that these monarchies are using all of these people, they're kind of cheating them and they are abusing their power to get what they want, to get rich. So that is what they are trying to say with caricatures. It
criticize the morality of this thing, and there would be more kind of cartoons and caricatures. मतलब ये cartoons जैसी चीज़ है, हम like publish होते रहते हैं ना यार, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में जो एक कॉमेडी वाला सीन होता है उसको caricatures कहते हैं, हम जो ड्राइंग करते हैं, तो एक इंसान होता है, ये वो करता है, गिर जाता है कहीं पर भी, कॉमेडी हो गया, ठीक है। चलो, दैट वाज इट फॉर द प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आसान सी ही चैप्टर है, बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रैप अराउंड दिस चैप्टर, एंड सो या दैट इज इट। और मैप तो हमने कर लिया था, सो आई डोंट थिंक वी नीड अनदर रिविजन thing for all of these chapters, ठीक है। So let's end this kind of a live on a high note. I know this is really late in the night, sorry, kind of early in the night actually, so have a good days. You're really close to your boards. I mean 21st Feb से शुरू होगी, like किसी और चीज़ों का बच्चों को like 15th Feb से ही है ना। हाँ, तो चलो चलता हूँ। आई एम योर पवन इन गौड़ा, आई एम योर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी मेंटर एट SAL सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर aka SAL. Thank you for watching. If you like this video, please do leave a like down below and comment down if you have any PYQs that need to be explained or answers. जब आप doubts पूछते होंगे तब ही हम आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आप जब बहुत सारे डाउट्स पूछ लोगे, उस डाउट्स को कंपाइल कर एक PDF बनाकर ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा यार। डाउट्स पूछो, हाँ, एक्सप्लेन करने, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे हो नहीं पा रहा है, पर फिर भी आई नो यू कॉल मी द अंग्रेजी वाला, पर आई एम सॉरी बिकॉज आई एम फ्रॉम द साउथ, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन हिंदी, तो इसीलिए मैं इंग्लिश और या आंग्ला भाषा को चुनता हूँ बात करने और ये एक्सप्लेन करने में, और मुझे लगता है कि आप इंग्लिश को कुछ समझ पाएंगे। तो हाँ, आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ भी लाइक थिंग नहीं है, बड़ी सी बात नहीं है, मैं ट्राई कर लूँगा। मेरे से भी लाइक यू नो ट्राई या फिर कुछ तो करना होगा ना, तो कर लूँगा। तो हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन पूछ लो और भी चाहिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो चलो।